class. Once again we are going to start the second part of narration. See, today we are going to start with second part of narration. In the first part we have already studied about those important facts and the terms which were important, not only important, but they were striking to solve your narration related problems. Okay, but now today as we are going to start, this is part 2. First of all, we will revise each and everything which we have already studied. Not only revision, it's not the revision, it's how to take theory into practical. Theory you have learned in part 1, all the details regarding your tense, regarding what should be changed into direct to indirect, what kind of changes are required, this all you have already done. Now in part 2 we have to use those theory portion into practical. Okay, so first of all quickly we will revise 3 points. Narration and its changes. ये आपने पढ़ लिया है already, narration and its changes. So here you can see tense wise changes and B no changes. ठीक है, टेंस वाइज चेंजेस इट मीन्स अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, और अगर चेंज नहीं हो रहा है, आई मीन नहीं हो रहा से मेरा मतलब है कि किस स्टेज में चेंज होगा ही नहीं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में दे दी है. सो अभी सेकेंड जो पार्ट था दैट वाज अबाउट चेंज इन पर्सन. चेंज इन पर्सन, देखो दो चीजें हैं, चेंज इन पर्सन एंड चेंज इन प्रोनाउन. So if you take it properly, this one, so first of all in part 1 I taught you how to make direct to indirect, कैसे हमें बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है. मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होंगी ही नहीं, जैसे कि हेड स्टेज, ऑलरेडी यू नो है ना. जब आप हेड स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो आपको फर्दर कोई चेंज नहीं करना है. इन द सेम वे टेंस वाइज जो चेंजेस होंगे वो किस तरह से होंगे ये भी आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. इसके बाद आपने पढ़ा चेंज इन पर्सन. चेंज इन पर्सन और चेंज इन प्रोनाउन में दोनों में क्या फ़र्क है. चेंज इन पर्सन का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ चेंज इन प्रोनाउन, change in pronoun because noun we cannot change, then now change in person and change in pronoun. So change in person means first person, second person and third person. This is called, this is related to SON theory, I already taught you. So now change in pronoun. Change in pronoun means which pronoun will change into what. ये this is our target for part 2 because this all you have already done and studied, and if you want to revise you can go to part 1, narration part 1. So today we are going to start from here, change in pronoun. During change of person we studied that there is SON theory. First person will be changed according to subject, always. First person always change, it will change according to subject, second person according to object, and third person no change. But if we will talk about this pronoun, then it has already been divided into 3 parts. Okay, how? Let us start.
So today our topic is change in pronoun. Okay, for example, he is a good boy. He is a good boy. So this he is pronoun. This he is pronoun. He is a good boy and he works hard. ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, राम said, okay, Ram said he is a good boy and he works hard, right? So this he belongs to which category? You have studied in part 1. Tell me that he belongs to third person. Third person means no change. No change. Okay? So he will be placed as he without any change. So what we will write? Ram said that he a good boy and works hard. And he works hard, है ना? And he works hard. Now tell me that because this he is third person, we have written here the same he. हमने यहाँ पे same to same ही लिख दिया है. क्यों लिख दिया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है. लेकिन ये थर्ड पर्सन है क्या? नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है. ठीक है, तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी नो चेंज पोजिशन पर लिखा हुआ है. सो हमने इसको यहाँ पर सेम लिख दिया. अब आते हैं इस दूसरे पॉइंट पे, दैट इज इज को हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सेम टू सेम लिख सकते हैं या हमें इसको चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा. क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि जो इज है ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है और हमें पता है कि अगर हम टेंस से नरेशन में डील कर रहे हैं तो टेंस जो है वो प्रेजेंट का पास्ट बन जाता है. हमेशा एक टेंस फॉरवर्ड हो जाता है आगे, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. तो अगर यहाँ पे इज दिख रहा है तो ये क्या बन जाएगा? वॉज. प्रेजेंट इनटू पास्ट. ठीक है, क्योंकि ये कोई टेंस नहीं है. यहाँ पे इज जो है वो किसी टेंस को नहीं दिखा रहा है. दैट इज ओनली सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव एंड प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. ओके, सो आपने ये देखा ध्यान से कि हिराम सेड दैट ही को हमने चेंज नहीं किया. क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन था. ठीक है, लेकिन अब इसी सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी कि ये थर्ड पर्सन था इसलिए हमने चेंज नहीं किया. लेकिन किस चीज़ का चेंज हुआ? टेंस का चेंज हुआ. टेंस का चेंज हुआ. और इसके अलावा देखिए ध्यान से, इसके अलावा ध्यान से देखिए कि अगर इस सेंटेंस में हम लिखें कि राम सेड ही इज अ गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज ब्रदर. ध्यान से देखिए, he was a good boy and he works hard for his brother. इस सेंटेंस में एक आपका जो सेंटेंस है वो सब्जेक्टिव है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है. तो चेंज ऑफ प्रोनाउन ये कहता है कि अगर सब्जेक्टिव केस नहीं चेंज होगा
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में अगर सब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव भी चेंज नहीं होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ थर्ड पर्सन है, आपने इसको थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन लिख दिया और एरर यहाँ पर है हिज में। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन में रूल नंबर 1 कि इफ ईदर ऑल द प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड और नो चेंज इन प्रोनाउन स्पेशली ऑफ सेम फैमिली। यही है ही का ऑब्जेक्टिव है हिज, ही का ऑब्जेक्टिव है हिज, इसलिए ही अगर यहाँ चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ पे हिज को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिज को भी सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखिए ना, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक और ये दो आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं, है ना, राम सेड रवि। एक आपका क्या है, सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, जो भी वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, है ना। सो आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय बट माई ब्रदर इज लेजी। अब ध्यान से देखिए कि एक आपको प्रोनाउन यहाँ मिला और दूसरा आपको मिल रहा है यहाँ पर। एक्चुअली जो ये आई और माई है इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो अगर आपने आई को देखा तो आई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, है ना। फर्स्ट पर्सन एसओएन थ्योरी के हिसाब से किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ध्यान से सुनिए, आई है, आई को आप किसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कहाँ है, ये सब्जेक्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रवि के पास हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो पास में लिखा जरूर है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है। आई राम, तो आई का चेंज राम के हिसाब से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आई किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, और राम कह किससे रहा है, रवि से कह रहा है, ठीक है। सो राम सेड रवि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, राम सेड रवि, यहाँ यूजुअली आपको 2 लगा के मिलेगा, यहाँ आपको 2 नहीं लगाना है। राम सेड रवि दैट ही, ये ही कहाँ से आया, ये ही कहाँ से आया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट राम के लिए यूज़ हो रहा है, जब नरेशन के पास गए तो ही बन गया। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एक कॉमन फिनोमिना है जो आपको अलग से लिख लेना है। मैं तो कह रही हूँ उसको आप इस तरह से लिख लीजिए कि दैट इज राम ऑब्लिक ही, ओके, टू आई एंड इन चेंज इट विल बी ही। इसका मतलब समझ में आया। अगर यहाँ पे नाउन है, कोई भी नाउन है जो कि मैस्कुलिन है ना, तो वो राम रहेगा, और राम है या फिर वहाँ पे कोई ही लिखा हुआ है, ही लिखा है, ही इज प्रोनाउन, अगर ही है या नाउन लिखा है, राम लिखा है, दोनों ही सिचुएशन में आपका जो ये आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, ही में। ये दैट इज स्टेप 1, इसको आप अलग से नोट करेंगे अपने नोट्स में। फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो ये ही यहीं से निकल कर आया, जिस तरह यहाँ पे ही आ गया उसी तरह ये यहाँ पे ही आ गया। यही किसके रिलेशन से बना, आई राम ही। राम सेड रवि दैट ही was a very hard working boy but अब हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव केस है, दैट इज माई। अब देखो यहाँ पे जब हमने आई को बदला तो सिर्फ आई में चेंज नहीं होगा, अगर आई में चेंज होगा तो उसका नीचे ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें भी चेंज होगा। तो बट his brother is LAZY। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो माई था वो क्या बन गया है,
हिज बन गया है। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो माई क्या बन गया, हिज बन गया। कैसे? क्योंकि अब आई क्या बन गया, ही बन गया। तो जब आई ही बनेगा तो माई क्या बनेगा, हिज बन जाएगा। ये भी एक कॉमन पैटर्न है जिसको आपको ध्यान से लिखना है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ वी विल नोट डाउन चेंजेस इन प्रोनाउन। चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे स्टेप 1, चेंज इन प्रोनाउन। स्टेप 1, फॉर एग्जाम्पल राम और ही। ओके, सो ही और हिज, नहीं, ही और माई, एंड हियर इट इज़ आई। सो ये जो है, जब ये रिलेशन इसके साथ डील करेगा तो ये बन जाएगा ही, और माई क्या बन जाएगा, हिज। दिस इज पैटर्न नंबर 1 एंड वेरी कॉमन पैटर्न। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। Okay, next question, look here. Reena said to Ravi, ध्यान से देखिए, ये अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, रीना सेड टू रवि ही इज़ नॉट माई ब्रदर। दो चीज़ें हैं अलग अलग। क्यों? ये तो ही है और यहाँ माई है। इसका मतलब ये हुआ कि ही तो थर्ड पर्सन है और माई फर्स्ट पर्सन है। यानी इस सेंटेंस में ही और माई दो अलग अलग लोगों के बारे में बता रहा है। ही है, कोई थर्ड पर्सन है, और माई इज फर्स्ट पर्सन। तो रीना सेड टू रवि, रीना ने किससे कहा, रवि से कहा। क्या कहा? रीना सेड टू रवि दैट, ये टू हट जाएगा ना, रीना सेड रवि दैट, ही को तो आप सेम सेम लिख देंगे। रीना सेड रवि दैट ही को हमने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, उसके लिए हमें चेंज नहीं करना है। ही वॉज नॉट। अब मुझे सोच के बताइए कि ये जो माई है ये हिज होना चाहिए कि हर होना चाहिए? माई को किस में बदलेंगे? हिज लिखेंगे, ये ही के हिसाब से हिज लिखा जाएगा, या हम इसको हर लिख सकते हैं। माई किसके लिए यूज हो रहा है? ही किसका भाई नहीं है? रीना का। ही इज नॉट माई ब्रदर, तो ही किसका भाई नहीं है? रीना का। द रीना इज शी। इट मीन्स, देखो ये जो माई है वो फर्स्ट पर्सन है और वो वापस चल के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास आ गया। कोई ज़रूरी नहीं, पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, पार्ट 1 में जो हमने एसएन थ्योरी पढ़ी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यहीं पे मिलेगा। नहीं, वो बीच में भी मिल सकता है। जैसे कि सेंटेंस में यहाँ आ गया थर्ड पर्सन, नहीं चेंज किया हमने, ठीक है। लेकिन अब देखो फर्स्ट पर्सन फिर कहाँ आ गया? ये आ गया, बीच में आ गया, है ना। तो रूल वही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन सेंटेंस के जिस भी हिस्से में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज वो अपने रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर यहाँ पे लिखा है माई, तो माई कौन सा पर्सन है? आई। माई किसका ऑब्जेक्टिव है? आई का। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। माई भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? रीना। रीना इज अ गर्ल, दैट इज शी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीना सेड रवि दैट he was not her brother.
Reena said to Ravi, he is not my brother. It means Reena said to Ravi that he was not her brother. तो ये जो हर आया, आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि ये जो हर आया वो ही के रिलेशन से नहीं आया, वो रवि के रिलेशन से भी नहीं आया, वो किसके लिए आया? रीना ने जो ही यूज़ किया उसके लिए आया. नाउ व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन? समटाइम्स स्टूडेंट्स को लगता है कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो है वो उनको सिर्फ यहीं पे फॉलो करना है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको वो जिस भी हिस्से में मिलेगा सेंटेंस के, आप उसको उसी तरह फॉलो करेंगे जो रूल आपने एसओएन थ्योरी में पढ़ा है. नाउ केस नंबर 3, लेट अस टेक. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो हर आया है वो हर किसके लिए आया? रीना के लिए आया, रीना के वजह से आया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Now next, he said to his brother, I am not feeling good today. I'm not feeling good today. टुडे का क्या बन जाता है? टुडे क्या है? वर्ड ऑफ नियरनेस है ना. टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, दैट इज फॉलोइंग डे, टुनाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग, जो भी है ये सब है वर्ड ऑफ नियरनेस. नाउ है ना. सो ही सेड टू हिज ब्रदर, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे. सो ये जो आई है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. कोई डाउट ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है? ही के पास जाना है. क्या लिखेंगे हम? ही सेड हिज ब्रदर दैट ही वॉज नॉट फीलिंग गुड दैट डे. ये दैट डे कहाँ से आया? वर्ड चेंज इन वर्ड ऑफ नियरनेस है ना. तो वो अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी. फिलहाल आप ये देखिए कि टुडे किस में बदल गया? दैट डे में बदल गया. और ये जो आई है वो क्योंकि फर्स्ट पर्सन है कहाँ गया? ही के पास गया. ठीक है, एक छोटा सा चेंज करेंगे. Are you feeling well? Okay, so he said to his brother that are you feeling well? क्वेश्चन का ना सिर्फ पैटर्न बदल गया, पूरा टाइप बदल गया. क्या चीज़ बदल गई? अब क्वेश्चन किस फॉर्म में है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में है. लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म होने पर भी, फॉर्म कोई भी हो, हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन प्रोनाउन. फॉर्म कोई भी हो, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ पर्सन हर हाल में वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. अब यहाँ पे देखिए, ही सेड टू हिज ब्रदर आर यू फीलिंग वेल. चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले. He asked his brother if कहाँ से आया? ये ध्यान देने की चीज़ है. इफ़ कहाँ से आया? इफ़ इसलिए आया क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इंट्रोगेटिव हो गया है ना. इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इस सेंटेंस के बाद डिटेल में. ये इफ़ इसलिए आया क्योंकि जब भी आप इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस है उसका नरेशन कर रहे हैं तो उस नरेशन को जब आप करते हैं तो ये जो पहले हम यहाँ क्या लगाते थे? दैट लगाते थे, क्योंकि हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता था. अभी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया है.
और भी बहुत सारे पैटर्न है ना, एक्सक्लामेटिव है, ऑप्टेटिव है। फिलहाल इंट्रोगेटिव में आपको 2 ऑप्शन है, इफ़ या वेदर। कोई रूल नहीं है, आप इफ़ लगाओ वेदर लगाओ, दैट इज अप टू यू, है ना। सो ही आस्क्ड हिज ब्रदर इफ, इस क्रॉस को समझना पड़ेगा, क्रॉस को समझिए। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि ये जो u है वो आगे आ जाएगा और r पीछे चला जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो r जब ये u आगे आ जाएगा तो ये u बदलेगा किसके हिसाब से, इसी हिज ब्रदर के हिसाब से, क्योंकि वो सेकेंड पर्सन है। क्या u क्या है, सेकेंड पर्सन है। किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। इससे अब कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि हम u के साथ डील कर रहे हैं। u कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो u जो है वो किसके हिसाब से बदलेगा, हिज ब्रदर। he said to his brother, are you feeling well? So he asked his brother if he was feeling well. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। चेंज नंबर 1, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रोनाउन, ठीक है, उस पर पहले फोकस करेंगे। तो अब आपने देखा कि सेंटेंस का फॉर्मेट इंट्रोगेटिव हो गया था, लेकिन तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव केस है, लेकिन फिर भी जो चेंज इन प्रोनाउन है वो नहीं बदला, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। यू सेकेंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। चेंज होके क्या बना, यू, हिज ब्रदर, ही। तो ये ही किसके लिए आया, फॉर हिज ब्रदर। क्यों, क्योंकि यू भी हिज ब्रदर के लिए आया था। यू इज ऑलवेज सेकेंड पर्सन। यहाँ सेकेंड पर्सन कौन है, हिज ब्रदर। फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन नहीं, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इस वजह से यहाँ पे जो आपका इफ़ है वो देखो सेम टू सेम वैसा ही चेंज हो गया है। क्लियर। चलो अब हम लोग चेंज इन प्रोनाउन हमने काफ़ी पढ़ लिया है डिटेल में। पर्पज़ ये है कि हमें ये चीज़ समझनी है कि SON थ्योरी जो कि आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया, उसमें आपको ये मान के चलना है कि सेंटेंस का पैटर्न कुछ भी हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका जो चेंज इन पर्सन है वो वैसे ही चेंज होगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव डन एनफ क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड स्टेप। देखिए अभी तक हमने सारी चीज़ें जो पढ़ी वो आपके सारे जितने भी नरेशन के केसेस हैं सबके लिए लगेगा, लेकिन अब हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा जो फंडामेंटल पोर्शन है वो ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न के बारे में। पार्ट 1 में आपने सिर्फ अफर्मेटिव क्वेश्चंस किए थे, अब आप करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव जो टाइप होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए जो ध्यान रखने की बात है उसको पहले हम लोग लिखेंगे साफ साफ। इंट्रोगेटिव केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इफ़ और वेदर, वेदर, ये वेदर वाला है ना, मौसम वाला नहीं। इफ़ या वेदर, if or whether will be used as conjunction। if या whether को हम किसी तरह यूज़ करेंगे, कंजंक्शन की तरह। अब हम that नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव केस में कभी भी that नहीं लगता, ठीक है। क्या लगता है, इफ़ या वेदर। इसका कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे इफ़ लग सकता है या यहाँ पे वेदर लग सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप लगा लीजिए, लेकिन दैट नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना है।
तो अगर कोई नरेशन का क्वेश्चन है जो कि इंट्रोगेटिव है तो हमें इफ या वेदर लगाना है, ठीक है। ये हो गया कंजक्शन। अब आप देखिए कि ये जो सेड था ना, हम बार बार लिख रहे थे सेड सेड, सेड नहीं लिखेंगे, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आपको सेड को किससे बदलना है, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, इस तरह के वर्ब का यूज करना है। सेड की जगह अब आपको लिखना पड़ेगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड, क्योंकि देखो इंट्रोगेटिव में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके मन में ये थॉट आ सकता है कि इंक्वायर्ड कब लिखेंगे और आस्क्ड कब लिखेंगे। सिंपल सी बात, जब आपको ऐसा लगे कि सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल डेली रूटीन लाइफ का क्वेश्चन है, जैसे कि आर यू फीलिंग वेल, सो ये इंक्वायरी करने वाली बात नहीं है, इसमें इंक्वायरी करने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर अकाउंट, सो इट्स नॉट अ रेगुलर क्वेश्चन, आमतौर पर लोग इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ये डिफरेंस आपको सेंटेंस के स्टेटमेंट से लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस में कितनी इंटेंसिटी है। इसमें आस्क्ड, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, सो वेयर आर यू गोइंग, इट्स अ जनरल थिंग, इसमें इंक्वायरी करने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई पुलिस वाला किसी से पूछ रहा है, सो द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, ओके। सो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन किससे पूछ रहा है या सेंटेंस में कितनी इंटेंसिटी है। सो वर्ब हमेशा आपको चेंज करना है आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन हमेशा ऐसे रहेगी, यानी कि क्रॉस पोजीशन। जो आगे है वो पीछे चला जाएगा, यानी कि इज एम आर, आर यू गोइंग देयर में जो आर है वो पीछे चला जाएगा, यू आगे आ जाएगा। तो हमेशा रिलेशन कैसा होगा, क्रॉस, दैट विल गो बैक एज अ नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। इनडायरेक्ट केस में जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस को पहले क्रॉस पोजीशन देना है, सब्जेक्ट को आगे ले आना है, और जो वर्ब है जो कि क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है ना, एम आई इल, तो एम कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। नंबर 3, रेस्ट ऑफ द चेंजेस will remain same। इसका क्या मतलब है, रेस्ट ऑफ द चेंजेस विल रिमेन सेम, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा कि आप दैट की जगह इफ या वेदर लगाएंगे, सेड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की को हमेशा क्रॉस पोजीशन में रखेंगे इनडायरेक्ट में। इसके अलावा यूजुअली जो चेंजेस होते हैं सॉरी, इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं वो वैसे ही होंगे, जैसे कि चेंज इन प्रोनाउन, वर्ड ऑफ नियरनेस, जैसे टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, वो पहले भी होता था अभी भी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द चेंजेस विल रिमेन सेम, बट देयर इज वन वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू राइट, दैट क्वेश्चन वर्ड विल बी changed into full stop। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन डायरेक्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा जैसे कि ही सेड टू मी आर यू इल, तो आर यू इल के बाद आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन जब आप उसको नरेशन करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा के आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमने वॉइस पढ़ा था तो अगर वॉइस में ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो नीचे भी क्वेश्चन मार्क ही लगाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये क्रॉस पोजीशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये सारे जितने रूल्स हैं इसको हमें अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ही
said to me, are you good? पहले सेंटेंस को ध्यान से देखिए. He said to me, are you good? क्या कह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस कह रहा है कि ठीक हो, तुम ठीक हो, क्वेश्चन कर रहा है. अब यहाँ पे लगा है एक कॉमा, एक डॉट कॉमा. नॉर्मली हम सेंटेंस में क्या लगाते थे? दैट लगाते थे. अब हमें दैट नहीं लगाना है, हमें लगाना है कुछ और लगाना है. लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन. देखिए ध्यान से. पहले एक सेंटेंस और लिखेंगे और दोनों का कंपेयर करेंगे. ही said to me, why are you not देखो, एक सेंटेंस है जो कि आर से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, जो कि क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, और एक है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है. दो सेंटेंस हैं, दोनों अलग अलग तरीके से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों इंट्रोगेटिव हैं. इंट्रोगेटिव दोनों हैं. ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है. ये भी इंट्रोगेटिव है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है. लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो दिख रहा है उसको क्या करना है, कंजक्शन क्या लगाना है, और यहाँ क्या कंजक्शन लगाना है. यही डिफरेंस है. पहले सबसे पहले ये डिफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि कॉमन एरर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत यूजुअली पूछ लिया जाता है. ध्यान से देखिए. अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं इफ़ या वेदर, कुछ भी लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, और ये क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है ना, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, हाउ, कुछ भी हो, व्हाट, कुछ भी हो. लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो आप उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे. समझ आई बात? यहाँ पे आपको कोई इफ़ या वेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप ये इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये खुद ही कंजक्शन की जगह को पूरा करते हैं. चलिए, तो ये तो हुआ पहला डिफरेंस कि अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आर, इज, एम, आर, वाई, आई मीन वॉज, विच, नहीं नॉट विच, दैट इज, हैज़, हैड, कुछ भी, कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो आप वहाँ पे इफ़ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन वर्ड के केस में आपको किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. इधर देखिए, ही सेड टू मी. अब जो ये ही सेड टू मी दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा? आस्क्ड बन जाएगा. क्यों? ये इंक्वायर्ड भी हो सकता है, ये इंक्वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा सेंटेंस आर यू गुड बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस, तो इंक्वायरी करने की इसमें कोई बात नहीं है. तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी टू, खत्म हो गया है ना. ही आस्क्ड मी इफ़. ओके, इफ़. अब ये जो है आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो नीचे आपको लिखना है वो इस पोजीशन में लिखना है, क्रॉस पोजीशन में लिखना है. ठीक है. तो यू आगे आ जाएगा और आर पीछे चला जाएगा. लेकिन आपको भी पता है कि यू को डायरेक्ट तो आप यू नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से. तो यू जो है किससे डील करेगा? मी से डील करेगा. ही आस्क्ड टू मी, आर यू गुड. ही आस्क्ड मी इफ आई, क्योंकि ये यू किसके लिए आया? मी के लिए. मी मीन्स मैं. सो ही आस्क्ड मी इफ आई. अब बताइए क्या लिखें यहाँ पे? क्या लिख दें? आई के साथ आर लिख सकते हैं? नहीं, आर तो वैसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें टेंस बदलना है ना. जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा. तो ये बताइए कि जब आई के साथ हमको यहाँ पास्ट लिखना है तो आर का रिप्लेसमेंट क्या होगा? दो ही हो सकता है. ये सिंपल प्रेजेंट है, हम नीचे सिंपल पास्ट लिखेंगे, तो आई के साथ क्या लग सकता है? वॉज या वर. वर हम नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि आई के साथ वर का मतलब इमेजिनरी सेंटेंस होता है. एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, वॉज, है ना. हम क्या लिखेंगे? इफ़ आई वॉज
गुड, और ये फुल स्टॉप। अब मुझे बताइए कि वो जो क्वेश्चन वर्ड था ये फुल स्टॉप में क्यों बदल गया? इस कंजक्शन की वजह से। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहा ही नहीं। जब इंट्रोगेटिव रहा नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क किस खुशी में लगाएंगे, है ना? चलिए वापस से पूरा रिवाइज करेंगे। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में यूजुअली बहुत आते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। लेट्स हैव अ लुक अगेन। चेंज नंबर 1, ये जो सेट टू था वो किस में बदल गया? आस्क्ड में बदल गया। ये इंक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सेंटेंस पे। सेंटेंस की इंटेंसिटी को देखते हुए या रेगुलरिटी को देखते हुए हम यहाँ आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। सो ही आस्क्ड टू, आपको पता है कि जब सेट टू को मिलाते हैं नीचे टू कभी नहीं लिखते, हमें डायरेक्ट वर्ब लिखना होता है, ठीक है। सो ही आस्क्ड मी इफ कहाँ से आया? इफ इसलिए आया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो किसी इफ वेदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इफ लगा लिया, वेदर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। इफ आई कहाँ से आया? क्योंकि हमें क्रॉस पोजीशन पे लिखना है, क्रॉस पोजीशन पे लिखेंगे, यू सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के साथ डील करेगा, वापस में क्या बनेगा? आई। आप एक जगह पे नोट्स बना सकते हैं इस तरह से कि अगर यहाँ पे यू है यहाँ मी है तो वापस में आएगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, 2-4 सेंटेंस करेंगे अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मी वापस क्या हो गया? आई हो गया। आई वॉज कहाँ से आया? क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैंडेटरी रूल है कि अगर आप नरेशन कर रहे हैं तो सिंपल नहीं, प्रेजेंट को पास्ट होना है, वो सिंपल हो या इंडेफिनिट हो या वो कॉन्टिन्यूअस हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो नीचे क्या होगा? पास्ट होगा। तो ऊपर प्रेजेंट था, नीचे पास्ट हो गया। आई के साथ वर हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वर लगाएंगे तो सेंटेंस फिक्शनरी हो जाएगा ना, इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया? आई के साथ वॉज लगाया। गुड इज ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड नीचे नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहा। चलिए ये सेंटेंस जो है ये हम लोग फिर से करेंगे फॉर प्रैक्टिस। ओके लेट्स स्टार्ट। ही सेट टू को क्या बना दें? बनाने के पहले अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे। वाई आर यू नॉट हैप्पी? रेगुलर सी बात लग रही है ना, एक आम सा क्वेश्चन है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, इसमें इंक्वायरी करने की कोई बात नहीं है। सो ही आस्क्ड मी। अब कंजक्शन की जरूरत है। कंजक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे वाई विदाउट एनी कंजक्शन, है ना। ही आस्क्ड मी वाई, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है हमेशा क्रॉस पोजीशन पे रहेगा। क्या? ये नहीं, ये तो आपने एज इट इज लिख दिया, ये तो कंजक्शन हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये हमेशा क्रॉस पोजीशन पे रहेगा। ओके, तो यू किसके पास गया? मी के पास। आई बन गया, आर को पास्ट को प्रेजेंट को पास्ट बनाएंगे, वॉज बन जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज नॉट, अपनी जगह पर नॉट हैप्पी। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस में हमने वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव रहा ही नहीं। He asked me why I was not happy. So अभी आपको क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना, ठीक है। सो ये दो सेंटेंस देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये जरूर याद रखिए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो हेड पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक। प्रोनाउन जैसे चेंज होते थे वैसे ही चेंज होंगे, इंट्रोगेटिव होने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वर्ड ऑफ नियरनेस है, कोई भी वर्ड ऑफ नियरनेस है, टुडे, टुमारो, यू नो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी है, वो वैसे ही चेंज होंगे जैसे आप पहले करते आए हैं। फॉर्मेट बदलने से, पैटर्न बदलने से इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंट्रोगेटिव के अपने खुद कुछ के चेंजेस हैं जो आपने देखा। क्या देखा आपने? कि सेट टू की जगह अब आप सेट नहीं लिख सकते,
आपको क्या लिखना पड़ेगा, आस्क्ड लिखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस आपको ज़्यादा इंटेंसिफाइड लग रहा है तो आप वहाँ इंक्वायर्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस में आप आस्क्ड लगाइए। कंजक्शन लगाने की 2 शर्तें हैं। कंजक्शन अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ही लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड WHY फॉर्म है, WH फॉर्म है, वाई, वेयर, वॉट, व्हेन, हुज, विच, कोई कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर जो प्लेसमेंट है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की, वो हमेशा क्रॉस रहेगी, चाहे आपका क्वेश्चन वर्ड हो या ना हो, वो हमेशा ही क्रॉस रहेगा। इसको आपने सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन देखो ये अभी भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस, ऑलवेज क्रॉस पोजीशन। सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे चला जाएगा। उसमें जो चेंजेस होने हैं वो वैसे ही होंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसको चेंज करेंगे क्रॉस पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट जहाँ है वही रहेगा, नॉट की पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसको आपको फुल स्टॉप में बदलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज इंट्रोगेटिव बेसिक, है ना। सो लेट अस टेक एडवांस लेवल ऑफ इंट्रोगेटिव just to make sure that you are ready to attempt all type of interrogative questions. He said to me, why do you live here alone? ध्यान से देखिए, He said to me, why do you live here alone? ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, इट्स नॉट अ डेली रूटीन क्वेश्चन। ये थोड़ा सा किसी की लाइफ में इंक्वायर करने वाला क्वेश्चन है कि आप क्यों रहते हैं। आई मीन ही वॉन्ट रीज़न, ही इज आस्किंग टू गेट रीज़न, सो इट्स काइंड ऑफ इंक्वायरी। ओके, सो यू राइट, आस्क्ड लिखना यहाँ गलत नहीं है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास चॉइस है तो आप आस्क्ड लिख सकते हैं, but if you use inquire that will be much better. So he inquired me, he inquired me, to हट जाएगा as usual, he inquired me why, क्यों हमने if नहीं लगाया, whether नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट WH लिख देंगे। ओके, सो ही इंक्वायर्ड मी वाई, अब ये वापस क्रॉस पोजीशन। ओके, सो यू है, यू किससे डील करेगा, मी से, यानी कि ऑब्जेक्ट से। क्या हो जाएगा, वाई आई। ओके, अब ये जो डू है, ये जो डू है वो उसको पीछे जाना है, ठीक है। लेकिन जब डू पीछे जाएगा तो क्या बनेगा, मुझे सोच के बताइए। ये सेंटेंस किस टेंस का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक तो इजी है, मैं आपको सच बताऊँ, इट्स अ जनरल थिंग। यहाँ से चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि आपको 3 चीज़ें एक साथ याद रखनी है, बहुत ध्यान से समझिए। नंबर 1 आपको याद रखना है कि ये जो सेंटेंस डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, है ना। तो जब डू पीछे जाएगा तो डू नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लिव्ड। डू किस में छुप गया, लिव के अंदर चला गया, क्योंकि उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो हम डू को डू तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें डिड लिखना है, और डिड नहीं लिख सकते। एक मिनट, मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करती हूँ, है ना। यहाँ देखिए, एक मिनट यहाँ पे रुकिए और देखिए, अगर सोच के देखिए कि हम इसको लिखते हैं कि क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें क्या बनाना है, पास्ट बनाना है। हमने यहाँ लिख दिया कि वाई आई डिड लिव। एक तरीका ये है हमारे पास कि जो डू है उसको हमें पास्ट बनाना है, तो डू को हम क्या लिख दें, डिड लिख दें। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ नहीं करते, बेटर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये जो डिड है, हम यहाँ डिड नहीं लिख के डायरेक्ट क्या लिख देंगे, lived. Why I lived here alone.
एक मिस्टेक अब भी रह गई, ये जो हियर है ये वर्ड ऑफ नियरनेस है, जब ये इनडायरेक्ट बनेगा तो ये देयर बन जाएगा, है ना, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली हमें बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा नरेशन बनाते समय, है ना। ये चीज़ आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। ही इंक्वायर्ड मी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये भी आपको पता है कि यहाँ कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाई है, आप डायरेक्ट लिख देंगे। अब आपको ये पता है कि वर्ब और सब्जेक्ट को क्रॉस पोजीशन देनी है। यू है क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से डील करेगा, उसी अकॉर्डिंग से चेंज होगा। डू है इसका मतलब नीचे हमेशा डिड होगा। डू है इसका मतलब नीचे हमेशा डिड होगा, लेकिन अफर्मेटिव में आप डिड नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर कोई वर्ड ऑफ नियरनेस है लाइक हियर, आप उसको चेंज करेंगे वो देयर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क अब हट जाएगा, क्योंकि पढ़ के देखिए आपका सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव नहीं रहा। ही इंक्वायर्ड मी व्हाई आई लिव देयर अलोन। ओके, so this is interrogative, but I will take one more question, you know, because I think this change of do deserves one more question. Okay, let us take one more question, and that is the final one. Rima said to me, do I love very interesting question. Rima said to me, do I love ice cream? So Rima asked, अब इसमें इंक्वायर की कोई बात नहीं है ना, हम देख सकते हैं कि इसमें इंक्वायरी जैसा कुछ नहीं है, वी विल राइट आस्क्ड। रीमा आस्क्ड मी इफ कहाँ से आया, क्योंकि सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ और ये पोजीशन हो गई क्रॉस। आई फर्स्ट पर्सन है, कहाँ जाएगा, रीमा के पास। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, रीमा के पास। ध्यान से देखिए, रीमा सेड टू मी डू आई लव आइसक्रीम। सो ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, कहाँ जाएगा, रीमा के पास जाएगा। और जब रीमा के पास जाएगा तो नीचे क्या लिखा जाएगा, शी। रीमा अपने बारे में पूछ रही है, वो मुझसे नहीं पूछ रही है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है कि नहीं, रीमा मुझसे पूछ रही है अपने बारे में, है ना। कई बार जैसे हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, तुमको लगता है कि मैं एक अच्छी लिसनर हूँ, अपने बारे में पूछिए कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तुम मुझे ऑफर कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। रीमा इज आस्किंग अबाउट हर सेल्फ। सो रीमा सेड टू मी डू आई लव आइसक्रीम। सो रीमा आस्क्ड मी इफ शी, रीमा शी। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है जिसके लिए हमने एक्चुअली ये क्वेश्चन लिया था, शी के लिए नहीं लिया था, डू के लिए लिया था। अगर ऊपर डू है तो नीचे पोजीशन क्या बनेगी, डिड। लेकिन अफर्मेटिव में हम डिड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो रीमा आस्क्ड मी इफ शी लव्ड आइसक्रीम एंड फुल स्टॉप। ओके, this is interrogative, very interesting, and I must tell you that usually people study grammar nowadays, especially just to clarify and qualify in some competitive exam, but honestly telling you that this is a beautiful language which gives you confidence also to speak and learn a foreign language, that is English. But grammar is the only source. Till the time your grammar is not update and crystal clear, you will face obstacles. You will remain hesitant. So this is the way. If you practice, not only it will help you in competitive exam, that will also give you confidence to speak up this beautiful language. So Rima asked me if she loved ice cream. It's a simple sentence.
बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही आसान है. ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर चार्ट, कब कहाँ क्या चेंज होगा. पार्ट 1 को आपको पहले क्लियर करना है. यू नो, दिस इज़ माई एडवाइस. लाइक पार्ट 1 आपका फंडामेंटल है, उसमें वो सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए. और ये पार्ट 2 इट्स स्पेशली अबाउट चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, एंड चेंज इन इंट्रोगेटिव. नाउ इन थर्ड एंड लास्ट lecture we will complete this complete narration, and that portion is very important of course, so we will cover it soon. Okay, so for today I am stopping here. This topic is done. Keep listening, keep practicing. That will give you not only confidence, that will give you a way to think how to frame your sentence and speak properly.